Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, students, in the last week, we have completed our history chapter number 1. So, today we are going to start with a geography book, chapter 1. The name of the chapter is The Earth in the Solar System. Now, students, you all are familiar with the word Earth, as you all know that Earth is a planet. Now, we will study in this chapter, we will study about the Earth and even our solar system. सारी चीज़ें solar system की and even Earth के बारे में हम study करेंगे इस chapter में. Now, I am going to start read. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. Now students, they are saying कि कितना अच्छा लगता है when the sun is going to set, the sunset कितना अच्छा लगता है sunset के बाद जब हम sky में देखते हैं तो तब हमें 2-3 डॉट्स दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे अंधेरा होता जाता है द डॉट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. You cannot count them anymore, and after some time you cannot count the dots. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Now, जब हम पूरे होल स्काई में देखेंगे तो बहुत सारे हमें स्टार्स दिखेंगे. ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो डायमंड से पूरा जड़ा हुआ है. स्काई में डायमंड्स हैं. एंड धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कि जो कुछ स्टार्स जो हैं वो बहुत ब्राइट हैं एंड कुछ स्टार्स जो हैं वो डिम हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon most of the day. It may, however, appears at different times, in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. Now students, जब हम in the sky when we see the whole moon, we used to say that full moon night or Purnima. And when we don't see any moon in the sky, this is the sky and we don't see any moon in the sky, then we used to say that the moon is new moon or Amavasya. On this day you can watch the night sky best. It is clear night. उस रात को हम बोलते हैं clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because, now student, they are asking one question कि हम दिन में सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को, स्टार्स को, मून को क्यों नहीं देख पाते. नाउ हियर इज द आंसर. यू हैव टू अंडरलाइन इट. It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all the bright objects of the night sky. इसलिए क्योंकि सूरज की जो इतनी तेज जो रेज होती हैं वो हमें अलाउ नहीं करती हैं स्टार्स को और मून को देखने के लिए. Now you have to underline this also. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सन, मून और ऐसी सारी चीज़ें जो स्काई में चमकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स द लाइनिंग विच आई एम सेइंग यू टू अंडरलाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल आस्क दैम ऑल इन द एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू read it once again very carefully. So please underline all these lines which I am saying to you. Now coming back to the chapter, what was it? सन, मून, जो भी सन, मून और जितनी भी चीज़ें हमें आसमान में दिखती हैं चमकती हुई, हम उसको बोलते हैं celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Now students, what they are saying, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बिग एंड हॉट होती हैं और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ किससे बनी होती हैं? गैसेस से. नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट टाइप ऑफ गैसेस दे आर मेड ऑफ. ये जो भी सन है, मून है, ये सारी गैसेस से जो बने हैं, तो इसमें ये कौन सी गैसेस से बने हुए हैं? दिस यू हैव टू फाइंड आउट. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनकी खुद की हीट और लाइट होती है और जो सन है वो भी एक स्टार है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. Now students, जैसे हमें सन इतना बड़ा दिखता है, लेकिन बाकी सारे स्टार्स अगर हम देखें तो वो सन जितने बड़े नहीं लगते, वो तो हमें बहुत छोटे लगते हैं. तो नाउ व्हाट्स द रीज़न ऑफ बीइंग सो टाइनी? इतना छोटा क्यों लगते हैं हमें सारे स्टार्स? वो इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है.
सन जो है वो हमारे से पास है, मतलब हमारी अर्थ से पास है, लेकिन जो स्टार्स है वो हमारी अर्थ से बहुत 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 ज़्यादा दूर है, तभी वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे से अपीयर होते हुए दिखते हैं. नाउ टर्न योर पेजेस स्टूडेंट्स. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. Now they are saying the same thing. कि आपने देखा होगा जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी लगती है. जैसे एरोप्लेन को अगर हम देखें जब वो उड़ता है और स्काई में हम उसको देखते हैं तो वो हमें कितना छोटा लगता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called कॉन्स्टिलेशन. ना व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन? जब हम कभी स्काई में देखते हैं तो हमें ना बहुत सारे पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं. स्टार्स ना कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, उन पैटर्न्स को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. Now here the name of constellation is given. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. ये name है Ursa Major and Big Bear. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Sapt means seven, Rishi means sages. सो ईजिली सबसे ज़्यादा जो रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि. सप्त मतलब सात, उसमें सेजेस, सात ऋषि मतलब सात मुनि ऋषि होते हैं ना, उनके बारे में मतलब वो एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. मतलब इंग्लिश में भी यूज टू से अर्सा मेजर एंड हिंदी द नेम इज सप्तऋषि. आज समवन एल्टर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई. आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी से भी पूछ सकते हैं इन कॉन्स्टिलेशंस के बारे में. Now see here the girl is making, here one pattern is forming like this, ऐसे. तो ये एक पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशंस. ऐसे जब स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. जो नॉर्थ स्टार होता है वो कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार. ना पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स कंपास तो होता नहीं था, तो हम स्टार्स की वजह से डायरेक्शंस फाइंड आउट कर पाते थे. नाउ सी हियर, जो बिल्कुल आइस के जो बिल्कुल सामने जो ये कॉन्स्टिलेशन था अर्सा मेजर, उसके जस्ट ये पॉइंटर स्टार्स के जस्ट सामने जो स्टार होता था ये नॉर्थ स्टार. तो ये दिखा रहा है कि ये नॉर्थ पोजीशन है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट एंड डाउनवर्ड्स साउथ. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ celestial bodies जो होती हैं उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, और वो किससे चलते हैं? लाइट ऑफ स्टार्स. मतलब स्टार्स की रोशनी उन पे आती है और तब वो हमें चमकते हुए दिखते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट्स केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. Now students, what they are saying, अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है. अब वो कैसे चमकता हुआ दिखता है? क्योंकि जो उसको लाइट है ना वो सन से मिलती है, और जब हम मून से अर्थ को देखेंगे तो वो भी हमें से चमकता हुआ दिखेगा अर्थ. तो इसको ये लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो मून हम देखते हैं स्काई में वो क्या है? एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट. लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर planets that get heat and light from the sun. Some of them they have their moons too. Now students, जैसे अर्थ को जो रेज है, जो रोशनी मिलती है वो सन से मिलती है, ऐसे ही देयर आर 8 planets. बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं, एक तो अर्थ हो गया, बाकी के रिमेनिंग 7 प्लैनेट्स, उनको भी जो लाइट है वो कौन देता है? सन ही देता है. और हमारा कंपेनियन जो साथी है अर्थ का वो है मून. This student is important. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belt of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. Now जो planets हैं Jupiter, Saturn and Uranus, उनके अराउंड ऐसे एक रिंग होती है. तो ये रिंग का मीन्स क्या होता है? मतलब इनके अराउंड ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमें ऐसे रिंग जैसे दिखते हैं. इसको हम डेब्रीज बोलते हैं स्टूडेंट्स. द सोलर सिस्टम. The Sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the Sun at its head. मतलब सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सन. Now see students, here the images of all the 8 planets is given. Mercury,
Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. This you all have to learn it. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These all are 8 planets. Now we will read about the Sun. The Sun is in the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The Sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. Now students, जो Sun होता है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, बिटवीन में होता है, बीच में. ये बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना होता है सन. और ये हमें कौन सा फोर्स, एक पुलिंग फोर्स देता है, मतलब एक बाइंडिंग फोर्स, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट इसके अराउंड मूव करते हैं. अगर वो फोर्स नहीं हो, उस फोर्स का नेम है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वो फोर्स नहीं हो तो सारे प्लैनेट हवा में इधर उधर घूमेंगे, है ना. तो जैसे हम एक जगह रह रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पाते हैं एंड रोटेट कर पाते हैं. But that tremendous heat is not felt so much by us. Despite being our nearest star, it is very far away from us. The sun is about 150 kilometers away from the earth. अब सन जो है हमें ऐसा लगता है हमसे बहुत पास है, लेकिन जब वो इतना पास है लेकिन तभी भी हम उसकी इतनी ज़्यादा जो हीट है, मीन्स जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसकी हीट हम इतनी फील नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि भले ही वो हमसे पास है लेकिन स्टिल वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और उसका डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. वो हमसे इतना दूर है, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर्स वो हमसे दूर है. This you have to read, students. Do you know? This is for yourself, so you have to read it by yourself only. So this is all for today, students. I hope you all have understood it. If you are having any doubt, you can ask me. Thank you, students.